غزہ کی صورتحال پر اسلامی ممالک کے سربراہان کی بڑی بیٹھک، OIC اور عرب لیگ کا مشترکہ ہنگامی اجلاس، فوری جنگ بندی اور آزاد فلسطینی ریاست کے قیام کا مطالبہ۔ غزہ میں حملوں کا ذمہ دار اسرائیل ہے، جنگ مسترد کرتے ہیں۔ غزہ میں فوجی آپریشن بند، مکمل جنگ بندی کی جائے۔ علاقے میں انسانی بنیادوں پر فوری امداد کی اجازت دی جائے۔ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان کا افتتاحی خطاب، سعودی ولی عہد کا یرغمالیوں کی رہائی پر بھی زور۔ سیکریٹری جنرل OIC حسین ابراہیم طٰہٰ نے کہا، معصوم فلسطینیوں کا قتل عام بند کیا جائے، غزہ کا فوجی محاصرہ فوری بند کیا جائے۔ سیکریٹری جنرل عرب لیگ کا پاکستان کا غزہ میں غیر مشروط اور فوری جنگ بندی پر زور۔ نگران وزیر اعظم انور الحق کاکڑ کہتے ہیں کہ اسرائیل نے غزہ کو جہنم میں بدل دیا ہے، ہاسپٹلز اور سکولز کو بمباری کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ غزہ میں جاری فلسطینیوں کا قتل عام رکنا چاہیے، علیحدہ فلسطینی ریاست کا قیام ہی مسئلے کا حل ہے۔ ناانصافی اور معصوم جانوں کا ضیاع مزید تنازعات کو جنم دے گا۔ پاکستان نے 2 طیاروں پر مشتمل امداد بھجوائی ہے۔ انسانی راہداریوں میں رکاوٹ ختم کر کے امداد کی فراہمی یقینی بنائی جائے۔ غزہ میں عارضی وقفہ کوئی حل نہیں، مکمل جنگ بندی کی جائے۔ ترک صدر طیب اردوان کہتے ہیں، اسرائیلی بمباری پر دنیا کی خاموشی شرمناک ہے۔ اسرائیل نے جو کچھ کیا اس کی قیمت چکانا ہوگی۔ غزہ کے ہاسپٹل معصوم لاشوں سے بھر گئے۔ ناانصافی پر خاموش رہنے والے برابر کے مجرم ہیں۔ جنگی جرائم پر اسرائیلی حکام کو کٹہرے میں لایا جائے۔ مسجد اقصی ہماری ریڈ لائن ہے۔ مشرقی بیت المقدس فلسطینی ریاست کا دارالحکومت ہونا ناگزیر ہے۔ فلسطین کا مسئلہ حل کیے بغیر اسرائیل سے تعلقات نہیں رکھ سکتے۔ فلسطینی ریاست مسلم امہ کا فخر، غزہ والے عالم اسلام کے ہیرو قرار۔ ایرانی صدر ابراہیم رئیسی کہتے ہیں کہ غزہ میں عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہو رہی ہے۔ امریکہ نے اسرائیلی مظالم کے لیے راہ ہموار کی۔ غزہ دنیا کی بڑی جیل بنا ہوا ہے۔ خطے کی تاریخ میں یہ فیصلہ کن وقت ہے، ہمیں غزہ کے مسئلے کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ غزہ پر فلسطینیوں کا حق ہے، آخر میں فتح انہی کی ہوگی۔ فلسطین کو بچانے کے لیے امت مسلمہ کو اکٹھا ہونا ہوگا۔ اسرائیل نے 2 ریاستی حل کو خطرے میں ڈال دیا۔ نہتے شہریوں پر ظلم عالمی برادری کے دوغلے پن کا ثبوت ہے۔ غاصب قوت کا خاتمہ قریب ہے۔ اسرائیل کو جنگی جرائم کا حساب دینا پڑے گا۔ فلسطینی صدر محمود عباس کہتے ہیں، نہتے شہریوں کو بین الاقوامی تحفظ ملنا چاہیے۔ تمام سربراہان اپنی ذمہ داریوں کو سمجھیں۔ امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی کہتے ہیں، غزہ میں مسلمانوں کا اجتماعی قتل عام قبول نہیں۔ اسرائیل کو جنگی جرائم پر عالمی عدالت انصاف میں لے جانا ہوگا۔ غزہ میں انسانی امداد پہنچانے کے لیے راہداری فراہم کی جائے۔ UN ٹیم غزہ میں جا کر اسرائیلی دعووں کی تحقیقات کرے۔ مصر کا قیام امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں کی حمایت کا اعلان۔ انڈونیشین صدر نے کہا، دنیا کا امن خطرے میں ہے، مسلم ممالک کو اتحاد کا مظاہرہ کرنا۔ بڑے بے آبرو ہو کر تیرے کوچے سے ہم نکلے، پاکستان کا سیمی فائنل کھیلنے کا خواب چکنا چور۔ انگلینڈ نے گرین شرٹس کو واپسی کا ٹکٹ تھما دیا۔ قومی ٹیم 9 میں سے 5 میچ ہار کر ورلڈ کپ سے باہر۔ انگلش نے ٹاس جیت کر ہی پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کر کے آدھا میچ جیت لیا۔ رہی صحیح کسر 338 رنز کا ہدف دے کر پوری کر دی۔ 40 گیندوں پر ہدف پورا کرنا ناممکن، مگر قومی بیٹرز کا روایتی کھیل۔ عبداللہ شفیق دوسری گیند پر چلتے بنے۔ نیوزی لینڈ کے خلاف میچ کے ہیرو فخر زمان 9 گیندوں پر صرف 1 رن بنا پائے۔ بابر اعظم نے 38، رضوان نے گرتے پڑے 36 رنز بنائے۔ کپتان کے سب میچ ونر ہارے ہوئے لشکر کے سپاہی نکلے۔ ون ڈے کی نمبر 1 ٹیم ٹاپ 4 میں جگہ نہ بنا سکی۔ جیسا کھیلے ویسا نتیجہ، دنیا کا بیسٹ بولنگ اٹیک پورے ورلڈ کپ میں ناکام۔ قومی بولرز نے ایسے مار کھائی جیسے گلی محلے کے کھلاڑی ہوں۔ جس بیٹر کے ہتھے چڑھے اسی نے ہاتھ کھولا۔ شاہین آفریدی کی ان سوئنگ ہوئی، نہ ہی حارث رؤف کی سپیڈ کام آئی۔ دونوں میں سب سے مہنگا بولر ثابت ہونے کا مقابلہ چلتا رہا۔ حارث رؤف نے ایونٹ میں سب سے زیادہ رنز کھانے کا ریکارڈ بنا لیا۔ شاداب خان کی گیند گھومی، ناہی نواز نے بھروسہ دکھایا۔ اسامہ میر کا تجربہ بھی کامیاب نہ رہا۔ 9 میچز میں قومی بولرز پاور پلے میں صرف 9 وکٹس لے سکے۔ زمان خان اور ابرار احمد نہ کھیل کر سرخرو رہے۔
निगरान वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा आज़म खान इंतकाल कर गए। आज़म खान को गुज़श्ता रात पेट में दर्द के बायस निजी हॉस्पिटल में मुंतकिल किया गया। दिल का दौरा पड़ने से ज़िंदगी की बाजी हार गए। आज़म खान सरकारी एजाज़ के साथ चार सद्दा में सपुर्द खाक। नमाज जनाजा में गवर्नर KP पंजाब और सिंध के निगरान वज़ीर आला, सूबाई वज़रा समेत सियासी और समाजी शख्सियात की शिरकत। आज़म खान रिटायर्ड ब्यूरोक्रेट थे, वज़ीर ख़जाना और वफाकी सेक्रेटरी वज़ारत पेट्रोलियम भी रहे। आज़म खान के इंतकाल पर कौमी और सियासी क़यादत का इजहार अफसोस। सदर, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो ज़रदारी और मौलाना फजल रहमान का लवाहिकीन से इजहार ताज़ियत। आज़म खान के इंतकाल पर KP की निगरान काबीना अज़ खुद तहलील। इंतज़ामी इख्तियारात गवर्नर के पास चले गए। नया वज़ीर आला कौन होगा, तरीक़ाकार पर सवाल उठ गए। कानूनी माहिरीन के मुताबिक निगरान वज़ीर आला के अचानक इंतकाल की सूरत हाल पर आइन खामोश है। साबिक़ अटर्नी जनरल अशतर औसाफ कहते हैं अब ये मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। यासीन आज़ाद ने भी नए वज़ीर आला का तकर्रुर इलेक्शन कमीशन का इख्तियार करार दे दिया। साबिक़ सेक्रेटरी इलेक्शन कमिश्नर कुंवर दिलशाद कहते हैं आइन के मुताबिक मुशावरत का इख्तियार सेनेट के पास है। सेनेट के अपोजिशन लीडर और लीडर ऑफ द हाउस मुशावरत से नए वज़ीर आला के नाम का ऐलान करेंगे। इत्तफाक ना हुआ तो मामला इलेक्शन कमीशन में जाएगा। असद उमर ने भी आखिर तहरीक इंसाफ को खैरबाद कह दिया। PTI की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान। समाजी राबते की वेबसाइट एक्स पर सियासत से दस्तबरदारी का ऐलान किया। कहा एक दहाई से ज़्यादा अवामी खिदमत के बाद सियासत छोड़ने का फैसला किया है। रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ये पॉलिसी इदारों से टकराव का बायस बनी जो मुल्क के मफाद में नहीं। इन सब लोगों का शुक्रगुजार हूँ जिन्होंने अवामी ज़िंदगी में मेरा भरपूर साथ दिया। हल्के की टीम और वोटर्स का भी शुक्रिया जिन्होंने मुझे 2 मरतबा मुंतखब किया। असद उमर 2012 में PTI के रुकन बने। 2018 में रुकने कौमी असम्बली मुंतखब हुए। वफाकी वज़ीर ख़जाना और वफाकी वज़ीर बराए मनसूबा बंदी भी रहे। £190 मिलियन केस। चेयरमैन PTI की अहलिया बुशरा बीबी की जल्द गिरफ्तारी का इम्कान। साबिक़ खातून अव्वल का स्टेटस गवाह से मुलज़मा में तब्दील। 13 नवंबर को पूछगछ होगी। नैब को साबिक़ वज़ीर आज़म के केसेस में पैसों की लेन देन से जुड़े नए शवाहिद मिले जो बुशरा बीबी ने मुबैना तौर पर वसूल किए। नैब की जानिब से रेफरेंस भी जल्द अदालत में दायर किए जाने का इम्कान। मुल्क इस वक्त बहरानों से घिरा है। महंगाई, बेरोजगारी है। महंगाई का चैलेंज दहशतगर्दी से बड़ा नहीं। हमने पहले भी मुल्क को बहरानों से निकाला, अब भी निकालेंगे। साबिक़ वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह कहते हैं महंगाई कम करने और डॉलर को वापस लाने के लिए हुकूमत बनाएंगे। दहशतगर्दी और लोड शेडिंग की तरह महंगाई पर भी काबू पा लेंगे। आम इंतखाबात से मुताल्लिक़ तैयारियों का आगाज कर चुके हैं। मरकज़ के साथ पंजाब में भी हुकूमत बनाएंगे। हमने हमेशा मुश्किल हालात में जिद्दोजहद की है। साफ शफाफ इलेक्शन के जरिए मैंडेट हासिल करेंगे। सिंध में जीत का मिशन। नून लीग के राब्ते तेज। लीगी वफ्द की कराची में पीर पगारा से मुलाकात। वफ्द में ख्वाजा साद रफीक, अयाज सादिक और दीगर शरीक हुए। वफ्द की JUI फेस सिंध के सेक्रेटरी जनरल राशिद सोमरो से भी मुलाकात। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं नून लीग सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं कर रही। इंतखाबात करीब हैं, सियासी मुलाकातें और सीट एडजस्टमेंट कर रहे हैं। अयाज सादिक बोले बिलावल के बयानात से पीपल्स पार्टी उम्मीदवारों का मोराल डाउन हो रहा है। वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं तो फिर जाती उमरा से बन जाएगा। आइन तमाम शहरियों को मजहबी आज़ादी की ज़मानत देता है। हम सबको शिद्दत पसंदी और अदम बर्दाश्त की सोच को शिकस्त देना होगी। आसिफ जरदारी कहते हैं पीपल्स पार्टी ऐसे मुआशरे के लिए जद्दोजहद कर रही है जहां अमन और बर्दाश्त का कल्चर हो। दूसरी जानिब बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इंतखाबी सरगर्मियों का आगाज कर दिया। PP चेयरमैन आइंदा हफ्ते खैबर पख्तूनख्वा का दौरा करेंगे। 16 नवंबर को एबटाबाद, 17 को मर्दान और 18 को पेशावर में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करेंगे। 73 साल की उम्र में मुझ पर 86 केसेस बना दिए गए। 20वें मुकदमे में आज जमानत हुई। 66 केसेस और हैं। शेख रशीद की अदालत के बाहर मीडिया से गुफ्तगू बोले शुक्र है जज साहब ने सस्ती जमानत दी।
66 केसेस अभी बाकी हैं। मेरे पास तो इतने ज़मानती भी नहीं हैं। बड़े लोगों से दरख्वास्त है कि जो बेगुनाह हैं उन्हें छोड़ दिया जाए। थाना कोसार में दर्ज 9 मई के मुकदमे पर समाअत। सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने शेख रशीद की 25 नवंबर तक जमानत मंजूर कर ली। 5000 रुपये के मचलके जमा कराने का हुक्म। उधर करप्शन केस में फवाद चौधरी को जेल में शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त। सेशन कोर्ट ने रिमार्क्स दिए, कानून के मुताबिक शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त है। लीगी रहनुमा आता तारड़ थाना अलीपुर चट्ठा हमला केस में बाइज्जत बरी। लीगी रहनुमा आता तारड़ कहते हैं, शेख रशीद और फवाद चौधरी की इमाम पर मेरे खिलाफ थाना हमला केस दर्ज हुआ। मुझे 3 साल जेल में रखने की बातें करने वाले आज खुद सलाखों के पीछे हैं। 2021 से अदालत पेश हो रहा हूँ। मुकदमा मेरी आवाज़ दबाने की साजिश थी। इलेक्शन से मुताल्लिक कहा कि इंतखाबात में इत्तेहाद की बातें क़ब्ल वक्त हैं, फैसला क़यादत ने करना है। इलेक्शन 8 फरवरी को ही होते दिखाई दे रहे हैं। IMF के साथ टेक्निकल सतह के मुज़ाकरात ख़त्म। पीर से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात शुरू होंगे। ज़राए के मुताबिक IMF का टैक्स महसूलात पर FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार। पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई और वज़ारत पेट्रोलियम शिरकत करेंगे। IMF मिशन की जानिब से नए मुतालबात किए जाने का इम्कान। मुआशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होने का इम्कान। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस हाईकोर्ट के अख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी की मामला इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। अदालती फैसले में इजाफी नोट लिख दिया गया। लिखा, चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत के केस को भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। बादियों नज़र में ये पहलू दुरुस्त दरख्वास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए ताकि वो इस पर फैसला कर सके। संगीन गद्दारी केस का ट्रायल करने वाली खुसूसी अदालत कलअदम करार देने से मुताल्लिक तहरीरी हुक्म जारी। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट से मुकदमे की कार्रवाई का तमाम रिकॉर्ड तलब कर लिया। खुसूसी बेंच की तश्कील और समाअत के लिए मुकर्रर करने का रिकॉर्ड भी मंगवा लिया। लाहौर हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ तमाम अपीलों को नंबर अलॉट करने का हुक्म। हुक्मनामे में कहा गया, परवेज़ मुशर्रफ के अलावा तमाम फरीकैन को नोटिस जारी किए जाते हैं। साबिक सदर के अहल खाना चाहें तो मुकदमे का हिस्सा बन सकते हैं। दरख्वास्त गुजारों के उठाए गए कानूनी निकात का जायज़ा लेना ज़रूरी है। मज़ीद समाअत 21 नवंबर को की जाएगी।